Hello everyone. Today we will be discussing the next topic from Neoplasia, which is hallmarks of cancer. So cancer is caused, specifically saying mostly acquired because of DNA mutations, and these DNA mutations further affect the fundamental cellular processes like growth, DNA repair and survival. Now there are nine hallmarks of cancer. First is the hallmark, which is growth signal self-sufficiency. Then there is anti-growth signal insensitivity. After that, we have evasion of apoptosis. Then there is limitless replicative potential. After that, sustained angiogenesis, Warburg effect, and immune evasion of cancer. So, in growth signal self-sufficiency, there are few genes that get mutation. These are proto-oncogenes. They further increase the growth factors, and this causes autocrine loop. Some growth factors example are increased PDGF in brain tumors. Then we have the growth factor receptors. This causes constitutive signaling. Example is HER2 in breast cancer. Then we have signaling molecules, example RAS, transcription factors like MYC, cell cycle regulators like cyclin and CDKs. Now, anti-growth signal insensitivity. In this, there are some tumor suppressor genes that have mutations. For example, RB gene and E-cadherin function. If lost, it causes loss of contact inhibition. And this, an example of this is NF2 mutation. Then we have some replicative potential that is limitlessly increased. This is because of the reactivation of telomerase, which causes the maintenance and lengthening of the telomeres. And after that, there is prevention of chromosome shortening and cell aging. Now, sustained angiogenesis. In this, there is pro-angiogenic factors like VEGF. This is increased and the inhibitory factors are decreased. These factors are produced by tumor or the stromal cells. There can be two things, either neoangiogenesis. This is the vessels that are sprouting like from the existing capillaries like this. And further, there can be vasculogenesis. In this, there are endothelial cells that are formed from the bone marrow. Vessels can be leaky or dilated. Then we have the Warburg effect. In this, the glucose metabolism is not used in mitochondrial oxidative phosphorylation, but it is shifted towards the glycolysis. This causes the release of carbon even in the presence of oxygen, and therefore this will be the aerobic glycolysis. It will release a lot of carbon, and this carbon will be provided to the rapidly dividing cells, and therefore they will be able to synthesize their cellular structures, and also there will be increased lactic acid. Okay, then we have the immune evasion. For successful tumorigenesis, the immune cells, what they do is they evade the immune system, because normally the immune cells can recognize and attack the tumor cells. So what tumor cells do is they decrease their own MHC class 1 expression. This makes the cytotoxic T cells unable to recognize the tumor cells, and after that the tumor cells they secrete immunosuppressive factors like TGF beta, and therefore they recruit the regulatory T cells and downregulate the immune response. Then further the tumor cells upregulate the immune checkpoint molecules, and this causes the decreased or inhibition of immune response. And then we have tissue invasion. Tissue invasion is basically when E-cadherin function is lost. Because of this, the intercellular junctions between the cells will loosen up, and further the metalloproteinases enzymes, they will degrade the basement membrane and the ECM. Okay, now because of that, the cells they will attach to the extracellular matrix ECM proteins, for example laminin, fibronectin, and
through that degraded ECM, the cells will migrate. This is known as locomotion, and after that there will be vascular dissemination. And then we have lastly the metastasis. In this, the tumor cells or the emboli, they will spread via the lymphatics or blood, and because of this, tumor cells will adhere to the endothelium and further do extravasation or homing over there. Now, in this, the site of metastasis can be predicted by the site of primary tumor, because the target organ is mostly capillary bed that is first encountered by the tumor. Now, there can also be organ tropism, like the lung cancers. They mostly metastasize to the adrenals. सो हमने इसमें पढ़ा कि कैंसर जो होता है उसके कुछ हॉलमार्क फीचर्स होते हैं, और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैंसर होता कैसे है। तो जब डीएनए म्यूटेशन आ जाता है तो वो सेल के फंडामेंटल प्रोसेसेस को इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि सेल की ग्रोथ, उसका डीएनए रिपेयर, सेल का सर्वाइवल एट्सेट्रा। इसमें टोटल 9 हॉलमार्क्स फीचर हैं, जैसे कि ग्रोथ सिग्नल, सेल्फ सफिशिएंसी, एंटी ग्रोथ सिग्नल इनसेंसिटिविटी, इवेजन ऑफ एपोप्टोसिस, रेप्लिकेटिव पोटेंशियल का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाना, एंजियोजेनेसिस इंक्रीज हो जाना, वॉरबर्ग इफेक्ट और इम्यून इवेजन। तो सबसे पहले ग्रोथ सिग्नल सेल्फ सफिशिएंसी में कुछ जीन्स होते हैं जिनमें म्यूटेशन आता है, जैसे कि प्रोटोऑन्कोजीन्स। इनकी वजह से सेल्स के ग्रोथ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, और इसके बाद ऑटोक्राइन लूप आता है। ग्रोथ फैक्टर्स के एग्जांपल हैं कुछ, जैसे कि इंक्रीज्ड PDGF, ये ब्रेन ट्यूमर्स में इंक्रीज होता है। ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर्स भी इंक्रीज हो सकते हैं, जैसे कि HER2 ब्रेस्ट कैंसर में इंक्रीज होता है। इससे कॉन्स्टिट्यूटिव सिग्नलिंग होती है कैंसर में। देन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जैसे RAS, RAS, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आ सकते हैं जैसे MYC, और सेल साइकिल के रेगुलेटर्स आ सकते हैं जैसे कि साइक्लिन और CDKs। अब एंटी ग्रोथ सिग्नल इनसेंसिटिविटी, मतलब कि ग्रोथ को रोकने के लिए जो एक सिग्नल होता है वो कम हो जाए अगर, तो इसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। जैसे कि ट्यूमर को सप्रेस करने वाले कुछ जीन्स होते हैं जैसे RB जीन, अगर ये म्यूटेट हो गया तो कैंसर हो सकता है। कैडेरिन फंक्शन का लॉस अगर हो गया तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं होती सेल्स के बीच में, और ये कैंसर में होता है। एग्जाम्पल है NF2 म्यूटेशन। देन वी हैव एपोप्टोसिस का इवेजन, यानी कि एपोप्टोसिस का कम हो जाना। म्यूटेशंस हो सकती हैं कुछ जीन्स में जो कि एपोप्टोसिस करवाती हैं, जैसे कि TP53 और BCL2। ये फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा में होता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा रेप्लिकेटिव पोटेंशियल सेल्स का इंक्रीज हो जाना, ये होता है जब रिएक्टिवेशन ऑफ टीलोमरेज एंजाइम होता है। इसमें अगर टीलोमरेज एंजाइम बहुत ज़्यादा रिएक्टिवेट हो गया तो टीलोमियर्स का जो लेंथनिंग है और मेंटेनेंस है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, और क्रोमोसोम शॉर्टनिंग नहीं होता, और सेल की एजिंग भी नहीं होती। एंजियोजेनेसिस भी सस्टेन होने लगता है। ये जब प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं सेल बॉडी में, जैसे कि VEGF, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, और इसमें इनहिबिटिंग फैक्टर्स डिक्रीज हो जाते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं प्रोड्यूस हो सकते हैं ट्यूमर से भी और स्ट्रोमल सेल्स से भी। वेसल्स 2 तरीके से बढ़ सकती हैं, या तो न्यू एंजियोजेनेसिस और वैस्कुलर एंजियोजेनेसिस। न्यू एंजियोजेनेसिस में वेसल्स जो है वो एग्जिस्टिंग कैपिलरीज के अंदर से स्प्राउट होती हैं, और अगर बोन मैरो से एंडोथेलियल सेल्स बन रही हैं तो उसको हम वैस्कुलोजेनेसिस बोलते हैं। ये वेसल्स जो है ये लीकी भी बन सकती हैं और डायलेटेड भी हो सकती हैं। देन वॉरबर्ग इफेक्ट, इसमें जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है यूजुअली माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन में यूज होता है, वहाँ पे ना यूज होकर शिफ्ट हो जाता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ग्लाइकोलाइसिस की तरफ। इवन इन द प्रेजेंस, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है फिर भी वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन ना करके ग्लाइकोलाइसिस कर रहा है। इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, और इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज होता है जो कि कैंसर सेल्स को हेल्प करता है उनके सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाने में। इसकी वजह से लैक्टिक एसिड भी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद कैंसर्स जो होते हैं उसमें कैंसर सेल्स इम्यूनिटी को भी कम कर सकते हैं, जैसे कि इम्यून सेल्स नॉर्मली रिकॉग्नाइज और अटैक करते हैं ट्यूमर सेल्स को, बट अगर ट्यूमर और जेनेसिस करवाना है ट्यूमर को
तो उसको इस सेल्स इम्यून सिस्टम को कम करना पड़ेगा। इसके लिए वो क्या करता है, ट्यूमर सेल्स MHC क्लास 1 कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, मेजर हिस्टोलिटिक कॉम्प्लेक्स, उसको डिक्रीज कर देता है। वो एक्सप्रेस नहीं करता, तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते, और इसकी वजह से ट्यूमर ग्रोथ करने लगता है। ट्यूमर सेल्स इम्यूनो सप्रेसिव फैक्टर्स रिलीज करता है, जैसे कि TGF बीटा, और वो टी सेल्स रेगुलेटरी टी सेल्स बनाता है ताकि वो इम्यून रिस्पॉन्स को डाउन रेगुलेट कर सके। उसके बाद ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो इम्यून चेक पॉइंट मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करते हैं, इसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स इनिबिट हो जाता है। देन वी हैव टिश्यू इन्वेजन। इसमें एक एडहेरेंट फंक्शन बिल्कुल लॉस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इंटरसेलुलर जंक्शंस लूज हो जाएंगे। जब ये लूज होते हैं तो इसके बाद मेटेलोप्रोटीनेजेस एंजाइम डिग्रेड कर देता है बेसमेंट मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या फिर ECM को। तो सेल्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के प्रोटीन्स के साथ अटैच करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स लैमिनिन, फाइब्रोनेक्टिन, ये सब, और इनसे अटैच करके वो जो डिग्रेडेड मैट्रिक्स, डिग्रेडेड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसके थ्रू वो माइग्रेट कर जाते हैं। इसको हम बोलते हैं लोकोमोशन, और इसके बाद होता है वैस्कुलर डिसेमिनेशन। अब आता है मेटास्टासिस। मेटास्टासिस में जो ट्यूमर है या एम्बोलाई है, ये लिम्फेटिक्स या ब्लड के थ्रू जगह जगहों पे स्प्रेड हो सकता है। इसमें जो ट्यूमर है वो एंडोथेलियम के ऊपर एडहेयर करके, मतलब उस पर अटैच करता है और वहीं पे एक्सट्रावेसेशन या फिर होमिंग कर देता है उस साइट पर। अगर ये साइट हमें प्रिडिक्ट करनी है तो प्राइमरी ट्यूमर का साइट से हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूजुअली, क्योंकि जो टारगेट ऑर्गन होता है वो मोस्टली वही होता है जहाँ पे सबसे पहली कैपिलरी बेड ट्यूमर ने अफेक्ट करी। और कुछ कुछ कैंसर्स में ऑर्गन ट्रॉपिज्म भी होता है, जैसे कि जो लंग कैंसर होगा वो कॉमनली कहाँ मेटास्टेसाइज करता है, एड्रिनल्स में।